friends, actually I'm first of all sorry for delivering this video a little late. I was involved in some other work actually because of the dengue spread across the country, in fact in our city. So because of that I was involved in some work because I am related with one orphan, so there were unfortunately 3 students who got dengue, so I was arranging the blood and other things for them. So because of that I couldn't manage to shoot the video. So anyway, as told earlier, today we are starting the theory of equation PYQs asked in JEE Mains and JEE Advanced both. मैंने जैसे बोला था कि मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लूँगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि JEE मेंस या एडवांस में कुछ सेम क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज ये एक मीथ है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है ऑल दैट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. So the first question is let alpha and beta be the roots of the equation. The equation is this, and they are given some Sn is equal to alpha power n plus beta power n, and they are given 4 options. So we have to find the values of it. That is a simple question they are asking. So it's the JEE Mains 2nd September first shift 2020. Fine. So let us start with such kind of question. I hope that. JEE Mains, you will come across many videos for the PYQs on the YouTube, but what those videos are giving and what I am giving is little different. So that's why you will understand, just watch the full video, you will understand what is the difference between the two. I told in the last video related with this that I will give you tricks which can solve the question within 15-20 seconds. It won't take more than 15 to 20 seconds. So just wait for the those kind of trick. So but you should also know the detailed process. You should also know the detailed process. तो पहले हम detailed process देखते हैं और उसके बाद tricks पर जाते हैं, because detailed process भी आना जरूरी है. So alpha and beta are the roots of this equation, और हमको बोला है 5s6 6x5 is equal to this ये 4 ऑप्शन है. फाइन. तो देखो यहाँ पर Sn है अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. सो S1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, S2 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब कहानी ऐसी है कि सब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. तो उसमें हम डिटेल में भी एक चीज़ देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन को देखते हुए मैं एक गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है S6 बार बार आ रहा है, S5 बार बार आ रहा है, S4 बार बार आ रहा है, ठीक है. सो ये 6, 5 और 4 का ही खेल है चारों ऑप्शन में. तो हम क्या करते हैं S4, S5 और S6 निकाल लेते हैं, ठीक है. तो S4 क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो S4 क्या होगा, इट विल बी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ऐसा होगा. बट उसके पहले हमको मालूम है जब एक इक्वेशन गिवन है, सो व्हाट वी कैन हैव सम ऑफ द जीरोस, दैट इज S5 एंड S6 की वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंड S6 विल बी अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, ठीक है. तो दो अप्रोचेस है, एक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का सम ऑफ द जीरोस इज -6/5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -2/5 and solving it. And the another approach is, since alpha is the root of the given equation, so I can replace x with alpha. Fine. So with that I think I will be in a better position. So I will replace x with alpha. So that gives me 5 alpha square plus 6 alpha, or rather I will just shift this to the other side. Or okay fine. So for first time we are just writing it like that, है ना. ऐसा हम लिख सकते हैं 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो इसको एक बार और वर्क कर लेते हैं. वर्क इस तरह से करते हैं कि हमको चाहिए अल्फा पावर 6 सॉरी S6 S5 S4. तो मैं इस इक्वेशन को सपोज अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना. अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा 5 अल्फा पावर 6 प्लस 6 अल्फा पावर 5 माइनस 2 अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सिमिलरली अगर मैं इसी रिलेशन को बीटा भी ले सकता हूँ, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो उसको भी अगर मैं बीटा पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका रिप्लिका आ जाएगा, दैट इज 5 बीटा पावर 6 प्लस 6 बीटा पावर 5 माइनस 2 बीटा पावर 4 इज इक्वल टू 0. हमको ये निकाल लेते हैं पावर 6 प्लस पावर 6. So let me just sum these two relations. So when I sum it out, I can take 5 common and it will be alpha power 6 plus beta power 6. और इन पूरे को उस साइड भेज देते हैं तो क्या होगा, 2 कॉमन अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, और ये जाएगा उधर तो -6 कॉमन अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5.
ठीक है। जनरली बच्चे जो है वो 9th स्टैंडर्ड के मेथड को फॉलो करते हैं, 9th 10th स्टैंडर्ड के अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है, ये अप्रोच है, ये भी पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। फाइन, व्हाट इज अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6? इट इज S6. सो आई कैन राइट डाउन 5S6 इज इक्वल टू 2S4 माइनस 6S5। ठीक है, 5S6 लिखते हैं ऑप्शन, 5S6 प्लस 6x5 इज इक्वल टू 2S4। तो मुझे पहले ऑप्शन लिखना है। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सो हम वो 10th की बेसिक मेथड से नहीं जाएंगे, इस मेथड से जाएंगे। जल्दी आंसर आ गया हमारा, फिर भी 2 से 3 मिनट लिया इसको, 2 से 3 मिनट लिया इसको। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को समझो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। न्यूटन आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली कुछ फॉरेनर्स लोग इतना वर्क नहीं करते, कुछ इंडियन का ही वर्क है और बस वो कॉपीराइट बना लेते हैं। ठीक है, एनीवे वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन न्यूटन आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। आई होप अगर किसी को मालूम होगी तो ये क्वेश्चन मैंने जो बोला था 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड का। ठीक है, देखो न्यूटन आइडेंटिटी क्या होती है। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है और अगर मुझे उन्होंने इस टाइप की कंडीशन दी है, लगेगा इसी टाइप की कंडीशन पे प्लस के अलावा अगर माइनस रहा तो भी लगेगा, प्लस की जगह माइनस रहा तो भी लगेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनको बोला है कि अल्फा बीटा उसके रूट्स है एंड Sn = अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, तो न्यूटन आइडेंटिटी क्या बोलती है? न्यूटन आइडेंटिटी बोलती, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये a का a लिखा, a का a लिखा, ये जो x² का टर्म है, ये जो x² का टर्म है उसकी जगह मैं लिख लूंगा s का सफिक्स n+1, है ना। अगर ये गिवन है हमको तो s, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इट विल डेफिनेटली चेंज द ट्रैक ऑफ द क्वेश्चन एट ऑल। सो और बहुत सिंपल है, a s n+1 प्लस b, x की जगह लिखेंगे sn प्लस c एज इट इज और इधर आ जाएगा sn-1। बहुत सिंपल है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और Sn की वैल्यू इस तरह से गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर रूट एंड नाउ गिवन इन द क्वेश्चन Sn = this. So in that case what you need to do, a as it is, b as it is, c as it is, x² is replaced by Sn+1, x is replaced by Sn and c is multiplied by, this is the constant term, Sn-1। बस इतना अगर याद है तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो अब क्या हो रहा है, हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब बकवास हो गया अब हमारे लिए। देखो हम कहाँ पर थे, हमारी इक्वेशन क्या है, ये है हमारी इक्वेशन, ये है। तो अगर मैं इसको इससे कोरिलेट करता हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा n+1 है, ऑप्शन में सबसे बड़ा 6 है, ऑप्शन में सबसे बड़ा 6 है, तो मैं 6 को n+1 ट्रीट करता हूँ, इसका मतलब n हो जाएगा 5। मैं 6 को n+1 ट्रीट करता हूँ तो इसका मतलब n हो जाएगा 5। नाउ जस्ट चेक आउट, यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, वहाँ का हम वो आइडेंटिटी समझ लिया, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 5Sn+1 प्लस 6Sn माइनस 2Sn, सॉरी माइनस 2S4 आगे ऑप्शन है। चेक आउट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5S6 प्लस 6S5 माइनस 2S4 ऑप्शन 1 ओवर। Isn't it 10 second question? If you know this identity, it is just a 10 second question. It's a 10 second question. It's a Newton identity, you can name it. Fine. Again I am repeating. It is x² की जगह Sn+1 आता है। अगर यहाँ पर Sn है तो यहाँ पर सबसे बड़ा 6 है, so हम लोग यहाँ पर S6 ले लेंगे। So 5S6 check out प्लस 6S5 उधर शिफ्ट किया 2S4। So this is हलवा क्वेश्चन, 10 second question. It is just a 10 second question. Fine. It won't take more than 10 seconds. Now jumping to the next question. This question is asked in JEE Mains 2011. I am taking these questions of the same set. That's why there will be little jump like from 2020. I go back to 2011.
So, okay, this formula I hope that you understood. So I love this. Now, we'll just check out this question. I already told that this formula, Newton identity, is applicable to both. That is plus as well as minus. Fine. So here it is minus. ठीक है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं बोला ये एयर लिखा है, कोई गम नहीं, एस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको भी एस कर दो, मतलब आदत बन गई ना इसलिए, सो एस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसका आंसर जो है बहुत सिंपल से 3 आने वाला है, ओरली है, विदाउट पेपर एंड पेंसिल ऑल्सो। ठीक है, मैं क्विकली बता रहा हूँ। मेरी इक्वेशन है x² - 6x - 2, अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, अल्फा बीटा आर द रूट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, प्लस की जगह माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आइडेंटिटी वही लगने वाली है। देखो हमको क्या पूछा है, सबसे बड़ा 10, सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे 10, तो इसका मतलब यहाँ पे Sn+1 10 आने वाला, मतलब N9 आने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, मैं लिख सकता हूँ S10, 18 लिखना है, 18 जो भी लिखना है, माइनस 6s9 माइनस 2s8, बता रहा हूँ करके टाइम लग रहा है लिखते हुए, अदरवाइज सीरियसली 10 सेकंड क्वेश्चन है। हो गया यार, आंसर देखते हैं। s10 माइनस 2s8, तो इसको भेज दिया उधर, ठीक है ना, s10 देखो सीधे मैं यहीं पर ही करता हूँ, s10 minus 2s8, s10 minus 2s8 is 6s9, so 6s9 upon 2s9, मैंने बोला था आंसर 3 है, ये कैंसल, 6/2 is 3, 6/2 is 3, fine. So basically if you understood the concept of the identity, then it is very simple. Both the question become a 10-second question, fine. So let me jump to the next question. We will just see the next question in the next set. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि मेंस एडवांस तो अलग ही लेवल रहता है, कोई अलग लेवल नहीं रहता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, नहीं है, देखते हैं है कि नहीं, हम चेक करते हैं। लेट p, q बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कहानी वैसे बन रही है, लेकिन यहाँ पर एडवांस है तो थोड़ा तो एडवांस रह रहेगा, मेंस थोड़ी रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, जेईई एडवांस 2017, ठीक है, वो प्रॉब्लम ये दे दिया कि उन्होंने p से मल्टीप्लाई कर दिया, q से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अल्फा पावर n बीटा पावर n रहता तो 10 सेकंड क्वेश्चन बनता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करता है, दैट्स व्हाई इट इज एडवांस। ठीक है ना, IIT, it's not NIT और अदर कॉलेजेस, इट्स IIT, तो थोड़ा तो रहेगा ही ना। ओके फाइन, कोई गम नहीं, हमको डिटेल मेथड मालूम है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल मेथड बताई है, फॉलो करते हैं। A12 पूछा है उन्होंने, ठीक है, तो पहले हम लोग कहानी यहाँ पे बना लेते हैं A12 की, मैं यहीं पे बता लेता हूँ। A12 क्या होगा, A12 क्या होगा, मतलब हमको निकालना क्या है, P अल्फा पावर 12 प्लस Q बीटा पावर 12, है ना, ये हमको निकालना है। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल मेथड देखा था, मैं लिख सकता हूँ, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, x² = x+1, ठीक है, और अल्फा और बीटा 0 से, तो α² = α+1। क्या करेंगे हम लोग, अल्फा पावर 12 पर आना चाहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा पावर 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा पावर 10 से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा पावर 12 = अल्फा पावर 11 प्लस अल्फा पावर 10, बन जाएगा, ये भी जल्दी बन जाएगा, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो समय खींचेगा बट बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बीटा पावर 12 = बीटा पावर 11 प्लस बीटा पावर 10, ठीक है, क्या चाहिए, ये चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा p से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज p टाइम्स, ठीक है, उधर हुआ उधर हुआ उधर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय p। अब इसको मल्टीप्लाई बाय q है, q से किया q से किया q से किया q से q किया, ये मत पूछना, ठीक है। अब दोनों का एडिशन, ठीक है, जब मैं एडिशन करने जाऊंगा तो दिस प्लस दिस, व्हाट इज दैट, A12 इज इक्वल टू दिस p अल्फा पावर 11 प्लस q बीटा पावर 11, ध्यान से p अल्फा पावर 11 प्लस q बीटा पावर 11 will be A11, fine, and what will be this, plus A10 directly
ओके, सो A12 की वैल्यू पूछी थी A11 प्लस A10, ठीक है, जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस क्वेश्चन। नाउ वन मोर पॉइंट हियर, अगर सपोज मैं इतना भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ तो इससे भी जल्दी हो सकता है। वो ये है कि हमको अगर वो न्यूटन आइडेंटिटी मालूम है तो यहाँ देखो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ भी कोई भी कोएफिशिएंट लगना नहीं है, तो ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी आ गई, ये सब दिमाग का खेल है। अब बचे ये दो, ठीक है, अब बचे ये दो। अब हमको मालूम है कि ये 12 को लेगा बिकॉज इट इज व्हाट n+1, एस n+1, तो ये 12 को लेगा x², ठीक है। ये दोनों जब उस साइड जाएंगे, ये दोनों जब उस साइड जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे बिकॉज यहाँ माइनस है, तो दोनों प्लस वाला एक ही ऑप्शन, ठीक है। सो इट्स अ जेई एडवांस क्वेश्चन। आई होप दैट दिस बिकम हलवा नाउ। इट्स जस्ट a 10-15 second question in order to explain it in detail, so I have just given this process which you can get in other YouTube videos, but that's the difference between the other YouTube videos and us. Fine, so we will just next go to the next question of a different variety. Thank you. Next question, that is question number 4. We can consider this to be same as that of the last 3 question. इंटेंशनली मैंने ये क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन के बाद लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हम लोगों की हैबिट पड़ जाती है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उनके कंप्यूटर बेस में अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, बाकी हम करेंगे वैसा ही, अगेन जल्दी आ जाएगा आंसर। 7th Jan क्वेश्चन, 7th Jan के दिन 2020 सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 7th Jan के दिन पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, सो कहानी वही है, पी के इज इक्वल टू अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। So fourth question in a series which is based on the same pattern. So please ये मीथ दिमाग से निकाल दो कि जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं या जेई एडवांस में, ठीक है जी। चलो अब देखो, मैं हमेशा हमारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए बचपन से देना चाहिए। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आते हैं। अगर किसी को जेई टाइप से एग्ज़ाम आगे जाके देना है तो NMTC प्री RMO इस लेवल की एग्ज़ाम देना चाहिए, उससे बहुत सारे जो बंद पुर्जे हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके भी मिल जाएंगे सॉल्यूशन वगैरह, लेकिन मैं इतना डीप जाने वाला नहीं, बहुत ऊपर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। सभी जगह P5 है, तो सबसे पहले मैं P5 निकाल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी अप्रोच है P5 निकालने का। हाँ जी, ये है हमारी इक्वेशन। सो P5 विल बी व्हाट, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो कुछ नया सीख चुके हैं। तो इसको 5 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, भेजो उधर। सो सिंपल P4 प्लस P3 है ना, P5 इज इक्वल टू P4 प्लस P3, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या तो मैं और कहानी बना सकता हूँ, P4 इज इक्वल टू, अब तो एकदम सिंपल है, P3 प्लस P2, वैल्यूज निकालना है ना, इसलिए P3 इज इक्वल टू P2 प्लस P1, ऐसा हम कर सकते हैं और इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और हमारा बचपन में सिखाया हुआ कि व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज P1 क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 1 प्लस बीटा पावर 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो P1 की जगह हम अल्फा प्लस बीटा जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरा अप्रोच कुछ और है, वो मैं पहले बता देता हूँ, बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू शो यू दैट पर्टिकुलर अप्रोच। सी, मैं ऑप्शंस कभी भी जब रहते हैं कोई भी एग्जाम में, तो मैं प्रीफर ऑलवेज करता हूँ कि ऑप्शन हो। अब कहानी यह है कि अगर हम एक हमारा बचपन का अप्रोच देखें, जिसको कि हम सम ऑफ द जीरोस वगैरह बोलते हैं, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर, अल्फा प्लस बीटा विल बी 1, ठीक है। अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बाद में देखते हैं, माइनस में सबको आता है। फाइन, मैं ना यहाँ पर इन दोनों को देख रहा हूँ, इसको और इसको। देखो दोनों P5 इज इक्वल टू है, P5 इज इक्वल टू है, बहुत सिंपल सी केस है। हमको पता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये दोनों पे जाना ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये मुझे बचपन में सिखाया गया था, क्यों? क्योंकि देखो P5 इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म P2 into P3 and P5 is a prime number, P5 is a prime number, so I can mention 11 just as 1 into 11, 1 into 11 है ना, P5
11 विच इज 1 into 11। इसका मतलब अगर ये दोनों करेक्ट है, अगर ये दोनों करेक्ट है तो कोई एक इसमें से 1 होना चाहिए, दूसरा 11 होना चाहिए। एक बार जल्दी से P2 निकाल लेते हैं। P2 क्या होगा जी? P2 होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई एंगल से नहीं दिख रहा है कि वो 1 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 into माइनस 1, सो इट इज कमिंग टू बी 3। तो इसका मतलब या तो ये गलत है या तो ये गलत है। अटैक P5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, किस्सा खत्म, ठीक है। 7 जन को आया क्वेश्चन थोड़ा तो टफ रहेगा ये। चलो ठीक है, P5 ओके। P2 हमारा निकल चुका है, P2 3 निकल चुका है। P1 कितना निकला? P1 क्या रहेगा? P1 अल्फा प्लस बीटा रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा इज 1, सो 3 + 1 4, ठीक है जी। तो ये हो गया 4। P3 की वैल्यू प्लस P2 क्या निकला था? P2 निकला था 3, 4 + 3 7। ये तो कहानी बन गई है। क्या आएगा? P4 कितना आया? 7 प्लस P3 कितना है? 4, 7 + 4 11। मतलब ये करेक्ट है, तो रॉन्ग ये है। सॉरी एक्चुअली हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है, हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है। देखो ये मिल जाएगा अगेन, PYQs बहुत अवेलेबल है, वीडियोस एंड ऑल दैट प्लीज। लेकिन आई होप दैट ये अप्रोच थोड़ा बेटर लगा होगा। एक तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया है ना। जनरली कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन देखो क्या किया था, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ये वो फलाना ढिकरा, बाप रे, ठीक है। ये टाइम तो है ना, मैटर करता ही है, ठीक है, टाइम मैटर करता ही है। देखो ये हार्डली मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो 30-40 सेकंड में तो बन ही गया, 41 सेकंड में, ठीक है। अदरवाइज वो आपको से जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलो, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये हमारे हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, जिसमें हमने न्यूटन आइडेंटिटी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। This is mains 9-10 first shift 2020. The number of real roots से पैटर्न अलग है, ठीक है। मैं ये पैटर्न भी जमा कर रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस टुगेदर। The number of real roots of the equation is this, क्या है? Number of real roots, ठीक है। मैंने ये पैटर्न कौन सा लिया? एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सपोनेंशियल का, या द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट्स क्या है? ये जब भी इक्वेशन हम देखते हैं तो एक सिंपल सा अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच ये लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वही अप्रोच लगाता हूँ इस क्वेश्चन को, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या लेंगे? आई लाइक द लेटर K, सो लेट मी टेक e power x is equal to K, so it will give me K power 4 plus K cube minus 4K square प्लस K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो e पावर x को हमने रिप्लेस किया। अब वही बचपन की बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब हम देखते हैं ये भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये इक्वल टू K है, तो K की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अब देखो इस कहानी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अलग अलग सॉल्यूशन सेट में एक कॉमन अप्रोच उन्होंने फॉलो किया। वो कॉमन अप्रोच क्या फॉलो किया कि भाई साहब K स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना। ये हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूज दैट कंसेप्ट। I told those questions came in pre-RMO, NMTC, etc., etc. See the live example. So we have sorted out to quadratic, and now you have to solve this. Now, if you remember Descartes rule of sign, ठीक है, हलवा बनाने वाले इस क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हम पहले वो वीडियोस देखेंगे ना जैसे वो फॉलो हुए। क्या करते हैं जी? वो करते हैं डिवाइडेड बाय K स्क्वायर कर दिया। तो देखो देखो कितना कितना देखो देखो मजा देखो, K स्क्वायर प्लस K माइनस 4 प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्लब करो, ये सब है भाई, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। प्लस K प्लस 1 अपॉन K माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो। अब क्या करेंगे?
इसको फिर गंदा करते हैं बिकॉज हमको k प्लस 1 अपॉन k को फिर सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको उस फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन k का स्क्वायर माइनस 2 कर चुके हैं ये, प्लस k प्लस 1 अपॉन k माइनस 4। अब k प्लस 1 अपॉन k को u लो, r ले लिया, r ले लो, चलो ठीक है r ले लो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2 प्लस r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया r स्क्वायर प्लस r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चा है, अब तो ये बच्चा है, तो r की वैल्यू आ गई 3 की माइनस 3। इट्स ब्रेक इज प्लस 3 एंड माइनस 2, ठीक है ना, प्लस 3 एंड माइनस 2, तो माइनस 3 r की वैल्यू आ गई, हो गया भाई माइनस 3 एंड r इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब निगेटिव तो आ नहीं सकता, हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं निगेटिव आ नहीं सकता, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 2। अब r इज इक्वल टू 2, सो k प्लस 1 अपॉन k को आ गया, k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू 2। अब ये तो आ गया, अब तो आनी चाहिए दो रेसिप्रोकल नंबर का सम, जो कि दोनों पॉजिटिव भी है, k पॉजिटिव है, 1 अपॉन k भी पॉजिटिव रहेगा। दो रेसिप्रोकल नंबर का सम 2 तभी आता है जब दोनों इक्वल हो, 1 प्लस 1 रेसिप्रोकल है ना, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 ही रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। whenever you come across this, I taught this thing in 9th standard. So k is equal to 1, so k is equal to 1, k is equal to 1, so e power x is equal to 1, so that is e power 0, so that means x is equal to 0, x is equal to 0 is the only solution. Question asked is the number of real roots, answer will be option D, है ना। कभी कभी बेवकूफ़ बनाते हैं हम, थोड़े से टेंस रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स, और हमको मिल गया आंसर x की वैल्यू 0, और यहाँ पर ना वो लोग 0 भी ऑप्शन दे देते हैं, तो हम लोग हमारे टेंस में जाके 0 पे क्लिक कर देते, मतलब इतनी मेहनत चली गई वेस्ट, टाइम गया, मेहनत की, दिमाग का सदुपयोग किया, सब वेस्ट, ठीक है। इसलिए टेम्परमेंट मेंस एडवांस में एकदम कूल रखना, एकदम कूल, जितना ज़्यादा कूल रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। गला कोई दबाने वाला नहीं है, ठीक है, एग्जाम जैसा ट्रीट करो, एकदम कूल, ठीक है। सो ये जो है इस लंबी कहानी रहती। अब आते हैं हम हमारे डेकार्टे पर। डेकार्टे से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दो साइन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो दो पॉजिटिव रूट रहेंगे, दो पॉजिटिव रूट रहेंगे और दो नेगेटिव रहेंगे या कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, और नेगेटिव तो वैसे भी हमको चाहिए ही नहीं, बस ये शुड बी पॉजिटिव, दैट इज फॉर श्योर, फाइन। अब एक और रूल मैंने उस समय सिखाया था, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4 0, इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 एक रूट है इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 एक रूट है। ये पूरी मेहनत करके हम अल्टीमेटली k इज इक्वल टू 1 पर ही आए थे, ओरली आ गए जी, है ना। ये कहानी बनाई हमने इतनी, शायद 2 मिनट लगा है, ठीक है। ये पूरी मेहनत करके मैं यहीं पर इतना डिवाइड किया k स्क्वायर से, बिकॉज कभी कभी ये भी क्लिक नहीं होता है कि अब यहाँ पे k स्क्वायर से डिवाइड करना है, दैट्स वाई मैंने इतना स्पेंड किया टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। गो बैक टू द वीडियोस एंड चेक आउट दोस वीडियोस, बिकॉज आई नो अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फाइन, एंड यू विल कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन मेनी टाइम्स। इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट इन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, complex number is related to theory of equation, you will come across questions based on complex number related to this and other topics also, fine। so see, इसको बना दिया हमने हलवा, k is equal to 1 आ गया, मतलब x is equal to 0, मतलब 1 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। सर आपने तो बोला दो पॉजिटिव रूट, तो दूसरा पॉजिटिव रूट का क्या किस्सा है? देखो भाई, दूसरा पॉजिटिव रूट यहाँ पर नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। अगर जाना ही है इसके डीप में तो इसको सिंथेटिक डिवीजन जो हम पहले कर चुके हैं सॉल्व करना, जो पॉजिटिव रूट आएगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ठीक है। नहीं सर आपको मालूम होगा, हमको कैसे मालूम होगा? बेट लगा लो, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन देगा ही नहीं। वो जानबूझ के प्ले करते हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ प्ले करते हैं हमेशा, ठीक है। कि अगर हमको इस तरह के कोई टीचर मिल गए और उन्होंने ये सब कहानी बता दी तो यहाँ पे आंसर 2 दे देंगे, नहीं, हमेशा ध्यान रखना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड पॉजिटिव रूट ये हो सकता है तुम्हारा इरैशनल जाए,
इरेशनल है, और इरेशनल यहाँ जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका बन गया। ओके फाइन, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5, बट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। शायद कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ का, मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा सेट से रिलेटेड है और बाकी तो पूरा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 मॉडुलस है इसमें। अच्छा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, उस साइड मॉड है, इस साइड प्लेन है। देन एस, चार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, शायद ऑप्शन दिख नहीं रहे हो। पहला ऑप्शन है कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो उसके सेट में जो करली ब्रैकेट में रहता है 2 आंसर है। इज अ सिंगलटन मतलब एक आंसर है। कंटेनिंग एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, कम से कम 4 मतलब 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। और इज एन एम्प्टी सेट मतलब वॉइड मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये इसके ऑप्शन है। फिर से 3 पावर x है, फिर से 3 पावर x को मैं बोलूँगा हमेशा पॉजिटिव रहता है बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो 3 पावर x को फिर से मैं लेटर k ले लेता हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज k minus 1 plus 2 is equal to mod k minus 1 plus k minus 2। फाइन, इस तरह की कहानी है। अब वो है ना, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को 3 केसेस आएंगे, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है। फटाफट करेंगे, चलो। सो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 आ गया इस साइड। उस साइड में पहला केस ध्यान में रखो दिमाग में, ठीक है। पहला केस क्या रखेंगे कि दोनों पॉजिटिव है, मतलब k की वैल्यू 2 से बड़ी है, k की वैल्यू 2 से, क्योंकि यहाँ पे केसेस ही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोनों पॉजिटिव है, k की वैल्यू 2 से बड़ी है तो दोनों पॉजिटिव है, तो k minus 1 plus k minus 2 is 2k minus 3। फाइन, सो फटाफट k स्क्वायर माइनस k minus 2k is minus 3k, 2 plus 3 5 is equal to 0। ओके। चलो फटाफट से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि रियल रूट्स और रियल रूट्स की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यानी ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों? क्योंकि b स्क्वायर हो रहा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac हो रहा है 4 5 29 माइनस 20 इज नेगेटिव। तो केस 1 खटाक उठ गई। सेकंड केस क्या है? दोनों नेगेटिव पॉसिबल, मतलब k की वैल्यू लेस देन 1, k की वैल्यू लेस देन 1 मतलब दोनों नेगेटिव। और नेगेटिव इसको ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो जब ये हो गया नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा? 3 minus 2k ना, 3 minus 2k को इधर बुलाएंगे, माइनस 2k इधर आएगा, माइनस k प्लस 2k माइनस 3 तो 3 इधर आएगा तो माइनस 3 2 minus 3 2 minus 3 minus 1 b स्क्वायर माइनस 4 इसे लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 plus 4 5। आगे बढ़िए। हाँ, सो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, रूट्स क्या होगी? k की वैल्यू, तो k1 k2, ठीक है। माइनस b प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2, उसमें से माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 नहीं आएगा बिकॉज इट शुड बी पॉजिटिव, बट माइनस 1 माइनस रूट 5 इज नेगेटिव। दूसरा आएगा, क्रॉस चेक कर लो, दूसरा क्या है? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। रूट 5 जो है बड़ा रहता है 1 से, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब एक सोल्यूशन मिल गया मुझे, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन मुझे सोल्यूशन लिखना नहीं है क्योंकि हमको क्या पूछा? कितने सोल्यूशन है? एक तो मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं? ये यहाँ पर कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। हाँ भाई मिल गए, चलो 2 लिख लो। भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं आता, इसलिए बोला बचपन की एनएमटीसी, बचपन की प्री आरएम बहुत कम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है कि ये नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो 1.5 k की वैल्यू है ना? नहीं 1.5 नहीं, कौन सी वैल्यू रहेगी? हाँ 1.5 रहेगी। तो 1.5 रहेगी तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एक वो केस भी बनेगा ना। तो बनाओ इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो ये तो उड़ गया, इधर 1 ही रहेगा। तो क्या बनेगा इधर? ये तो बड़ा हलवा है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और उधर 1 ही रहेगा।
minus 1 पॉजिटिव और ये minus 2 नेगेटिव, तो 2 minus ये भी कैंसिल, 1 1 1 वो 1 और ये 2 कैंसिल हो गए, 1 रह गया। अच्छा चलो भाई, अच्छा ये b स्क्वायर माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ये भी हमको इमेजिनरी दे रहा है, मतलब इसका आंसर हो गया, कहाँ गया, इज अ सिंगल टर्म, इज अ सिंगल टर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा शायद बड़ा लगे, लेकिन यार ये समझाते समय सही में टाइम लगता है, बट इफ यू गाइज रियली ट्राई दिस यू कैन गेट इट क्विकली। जैसे मैंने बोला, डोंट टेक केस 1 केस 2 केस 3, जस्ट बी फोकस। पॉजिटिव वाले में उड़ जाएगा, ठीक है, वी हैव डिस्क्रिमिनेंट देयर। नेगेटिव वाले में 2 आंसर है, ठीक है, रियल रूट्स है, लेकिन नेगेटिव वाला हमारा काउंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में फिर से इमेजिनरी है, उड़ जाएगा, ठीक है। होप दिस इज फाइन, सो लेट अस कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस। थैंक यू।